So hello everyone. Today we are going to start with the posterior triangle of the neck. तो posterior triangle मैंने आपको वीडियो जैसे से कंटेंट लिया है और जो डायग्राम्स है वो मेनली आई थिंक आपको विश्रांत सिंह में मिल जाएंगे बिकॉज विश्रांत सिंह में अच्छे डायग्राम्स है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टीरियर ट्रायंगल. पोस्टीरियर ट्रायंगल में 3 बाउंड्रीज होती है, 1, 2 and 3. Let's see. This is the triangle, so it is having 3 boundaries, 1 apex. और अगर इसके नीचे कोई फ्लोर होगा, इमेजिन इट इन अ 3D स्पेस, तो इसके नीचे एक फ्लोर भी होगा और ऊपर रूफ भी होगी. सो इट विल हैव 1, 2, 3, 4, फिफ्थ वन इज इट्स रूफ एंड सिक्स्थ वन इज लाइक इट्स फ्लोर. तो बाउंड्रीज में हमें 6 चीज़ें पॉइंट नोट करनी पड़ेगी. सो कम टू दिस डायग्राम. I have drawn this diagram, and if you want my notes then please comment me. I'll share you the PDF on your WhatsApp. So this is the sternocleidomastoid muscle anteriorly, मतलब आगे से it is covered by the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. पीछे से यहाँ पे trapezius muscle आती है जो अपने shoulder के उधर होती है, तो posteriorly मतलब पीछे से it is covered by the anterior border of the trapezius muscle. Its base, नीचे से it is covered by the middle 1/3 of the clavicle bone, which is also known as the beauty bone. And the apex, like this apex is formed by the superior nuchal line. किससे बनता है? superior nuchal line, and it is formed where the sternocleidomastoid muscle and the trapezius muscle meet. Okay, तो मैं आपको रूफ और फ्लो बताने से पहले मैं आपको नर्व्स के बारे में बता देती हूँ. I'll explain you it in a simplest diagram which I have drawn. So it is the simplest diagram. This is the posterior triangle. This is the sternocleidomastoid muscle boundary. This is the trapezius muscle boundary, and this is the clavicle bone boundary. Okay, and this is the inferior belly of omohyoid, which divides the posterior triangle into 2 parts: occipital triangle, and the second one is this supra triangle. सो जो ऑसिपिटल ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल होता है उसमें 4 मसल प्रेजेंट है. जो उसका फ्लोर होता है वो 4 टाइप ऑफ मसल से बनता है. फर्स्ट वन इज सेमिस्प्लेनालिस कैपिटस. दिस वन, ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं सेमिस्प्लेनालिस कैपिटस. उसके बाद आता है स्प्लेनियस कैपिटस, सेमिस्प्लेनालिस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, and then we have levatus scapula, and the last one is cleneus medulla. Okay, once more revise with me. ये जो सबसे पहले जो मसल होती है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है वो होती है सेमिस्प्लेनालिस कैपिटस, सेमिस्प्लेनालिस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, levatus scapula and the cleneus medulla. Okay, सो जो ऑसिपिटल ट्रायंगल होता है उसमें कौन कौन से, उसमें 6 नर्व प्रेजेंट होती है. 6 nerves and arteries are present on the occipital triangle. So what are they? Just a minute. So सबसे पहले जो अपन ये ट्रायंगल बनाया मैं आपको एकदम इजी वे में समझा रही हूँ, जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायग्राम बना के इजीली आ सकते हैं. यू विल गेट अ गुड मार्क्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नर्व है जो ऊपर की तरफ जाती है, विच इज़ लेसर ऑसिपिटल नर्व. एक नर्व अपन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक नर्व अपन ये नीचे लेके जाएंगे, एंड द फॉलोइंग 2 nerves विल गो बैकवर्ड एंटीरियरली. इट विल गो एंटीरियर. 5th नर्व आगे जाके 3 nerves में डिवाइड हो जाएगी. और 6th नर्व होती है वो होती है लेवेटर जो मसल, levatus scapula muscle. It is a levatus scapula muscle, and it is the inferior belly of omohyoid. It is present between the junction. Okay, तो let's talk about the name. जो nerve है वो ऊपर जा रही है, that is the lesser occipital nerve. It is the lesser occipital nerve. Second one is the spinal accessory artery जो आगे जा रही है, that is spinal accessory artery. And जो पीछे की साइड जा रही है that is greater auricular nerve and the transverse cervical nerve. Greater auricular nerve and the transverse cervical nerve. 5th one जो आगे जाके डिवाइड हो रही है that is supraclavicular nerve. Supraclavicular nerve जो आगे जाके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. And this is the dorsal scapular nerve. I hope you will remember this. Now let's come to the subclavian triangle.
तो सबसे पहले सबक्लेवियन ट्रायंगल पे सबक्लेवियन आर्टरी होगी जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ह्यू प्रेजेंट होगी एट द लाइक एकदम कॉर्नर में। ये भी मैंने बहुत कम बना दिया, ये डॉट लाइक मोर, तो ये एकदम कॉर्नर में प्रेजेंट होती है। सबक्लेवियन आर्टरी से जो वेन जाती है दैट इज एक्स्ट्रा जुगुलर वेन। ये एक्स्ट्रा जुगुलर वेन ऊपर की तरफ जा रही है। एक्स्ट्रा जुगुलर वेन से एक ब्रांच निकलती है दैट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी व्हिच इज दिस वेन। ये जो जा रही है हॉरिजॉन्टली दैट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल। और ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को पियर करते हुए आगे चल जाती है टू द पैरोटिड ग्लैंड। इफ यू इमेजिन इट इज नियर योर लाइक नेक के इधर है, तो साइड ऑफ द नेक। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो आपकी गाल की उधर होती है, चीक्स की उधर होती है। इफ यू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, और आई विल टीच यू इट इन द फर्दर वीडियोस। तो मैंने आपको नर्व समझा दी, सो लेट्स कम टू द बाउंड्री। पोस्टीरियर ट्रायंगल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू शुड नो द बाउंड्रीज एंड अबाउट द नर्व सप्लाईज ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल व्हिच आई हैव एक्सप्लेन यू सेपरेटली फॉर द this is for the occipital triangle and these nerves are for the subclavian triangle. So these are the nerves. These are the boundaries. Anteriorly it is covered by the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. Posteriorly anterior border of trapezius muscle. Apex superior nuchal line, base middle 1/3 and roof. Roof it is covered by the platysma. If I will show you the diagram, if you want to see, I'll show you the diagram. So this is the diagram. जो डीप सर्वाइकल फेशिया होता है उसकी 6 लेयर्स होती है, दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर्स, प्रीट्रैकियल लेयर्स, प्रीवर्टिब्रल फेशिया, कैरोटिड शीट, बकोफेरेंजियल फेशिया एंड द फेरिंगोबैसिलर फेशिया। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो इन्वेस्टिंग लेयर होती है, और इसके भी बाहर जो है वो आपकी प्लेटिस्मा प्रेजेंट होती है, जो आप अपने डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज द प्लेटिस्मा मसल जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाती है। और रूफ कौन सी वेन बना रही है? दिस एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज मेकिंग द रूफ, एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड द पोस्टीरियर जुगुलर वेन। पोस्टीरियर जुगुलर वेन जो है वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन की ही एक ब्रांच है, पार्ट ऑफ सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी। सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी मैंने कहा बताई थी आपको, ऑसिपिटल ट्रायंगल रिमेंबर, जो एक आर्टरी, 2 आर्टरी थी पीछे जा रही थी, वो तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व थी, और एक थी ग्रेटर ऑसिपिटल, और एक जो 3 में डिवाइड हो रही थी वो थी सुप्राक्लेविकुलर नर्व। सो द पार्ट ऑफ सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी, ग्रेट ऑरिकुलर जो पीछे जा रही थी, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस जो भी पीछे जा रही थी, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस को आप ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड द लेसर ऑसिपिटल नर्व जो आपके ऊपर की साइड जा रही थी, यू कैन सी हियर। एंड द फ्लोर बेस मैंने आपको बता ही दिया था, सेमिस्प्लेनरस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, sclenius medius and the levator scapula. These are the 4 muscles which make the floor of the posterior triangle and it is all covered by the deep fascia. अगर आप ये पॉइंट लिखोगे deep fascia वाला, then examiner definitely आपसे खुश होगा and he will give you bonus marks. So it is all about the posterior triangle of the side of the neck. If you like my video then please share, like, share and subscribe, and if you want more videos please comment me. And if you want the PDF of my notes, I'll definitely give you it on your WhatsApp number. Please WhatsApp me your number on the comment section, or just DM me on Instagram. I'll share you my Instagram ID soon. Thank you.